Hi, Namaskar students. I hope all of you are good enough and welcome to today's session. Today we are going to discuss all the key points about the opportunities as a pharmacist all across the world and what are the career options you will get as a pharmacist. Okay. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन और आपको जो भी क्वेश्चंस है एट द एंड वी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क द क्वेश्चंस and pretty much we are covered all the points and concepts. Okay, so let's we start from I can say something with you so that can make more sense. Okay. Windows. Okay, that's the stuff. Okay, 1 second. I can just save something with you. Stop saving. Stop saving. Stop saving. Okay, so it's visible, like this PPT is visible to you or not? Okay, good. Here we go. Let's welcome to the Pharmacist Career Guidance webinar. And today's agenda is we are going to cover these three most important points. The first one is career awareness and planning. Second is we are going to discuss about the country selection. What are the key points we have to keep in mind for the selecting the right country as per your objectives and your expectation out of that. Okay, and also we are going to touch upon the pharmacist licensing examination and its preparation. And at the last, we are going to give you an opportunity to ask the questions and answers. Okay, so there are so many different kind of questions pretty much all the pharmacy students have. I don't want to become the registered pharmacist. I want to build my future, especially in research. I want to do something in industry. So these are the career broad spectrum domains. I'm not talking about the careers. Okay, these are the domains you can work in. You have a biggest domain is the clinical area where you can work in hospitals, you can work in community pharmacy, you can work some kind of specialized clinical areas, disease management pharmacist, diabetic educator, specialized clinical consultant pharmacist. So there are so many opportunities in the area of clinical pharmacy. Some of the students are very much particular about the industrial career options. So here what you can do, you can expand your horizons. Don't only think about the pharmaceutical industry. Think about the pharmaceutical, food, cosmetic, biotechnology. These kind of industries are going to give you the broader spectrum of career options in the field of pharmaceutical and allied science. You can work in production, in quality assurance, in quality control. So those kind of career options you will get. Some of the students are more focused in research. So when we are talking about research, you have two different kind of areas you have to focus on. One is the laboratory and the other one is the epidemiological research. When we are talking about laboratory research, R&D and F&D are the most important part where you can study, for example, medicinal chemistry, drug designing, pharmacology, formulation and development, and some of the modern research like genomic science and genomic analysis, precision medicine, then some of the very, very specific kind of opportunities like neuroscience, cardiovascular related problems and research on that particular oncology related research. So there are laboratory related wide spectrum of research opportunities are there. So okay, now
I can say this is a PPT is visible to you or not? Can see 1 second. I can just think some of the students said they are not able to look at the PPT. Now I think it's visible. Okay, so it's like PPT is moving. Okay, that's good. So these are the options. Like we were talking about the research related options. Those students who are good in laboratory related research, they have a wide spectrum of career opportunities. And some of the students are more focused on the epidemiological studies, like public health and public health data, and also is health policy making kind of stuff. So epidemiology is the best option for those students. There are certain kind of students, they are very much focused on the government agencies, they want to work for the government agencies. So pharmacovigilance, public health, and also there are regulatory affairs, especially for the public health related issues, and health inspector. So this kind of career opportunities you can find in government agencies. Okay, and corporate world, some of the students are very good in the management kind of stuff, and they don't want to build their future core in technical pharmacy, but they are interested to build future in more corporate kind of stuff. So international business management, and research analyst, market research analytics, and data analytics for business decisions, strategic marketing management, those kind of subjects can open the opportunities in corporate world as well. Excuse me. Some of the students are technology oriented career they are looking for. So bioinformatics is one of the leading career opportunity in upcoming time. Currently in some of the countries, the 38 to 39% rate of the growing this particular industry. Okay, bioinformatics. Some students, they are looking for the more clinical practice, but it's not the patient to patient, but more kind of research related. Then they have a good opportunity in genomic science, genomic analysis, and IT related, like data analytics for public health, health informatics, bioinformatics, health informatics, business analyst, genomic science. So these kind of opportunities are also growing exponentially. Biotechnology is one of the most important domain you have to focus for the future growth. यहां तक हमने जो बात की है, यहाँ पे what's my primary focus is, I'm primarily focusing if the student is not interested in clinical area, they also have a great opportunity all across the world. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लाइसेंस ही चाहिए. हाँ, लाइसेंस के कुछ अपने एडवांटेजेस है, इसीलिए लाइसेंस करना जरूरी है. if you can do, definitely you have to do the license. But if you cannot do license, though you have a great opportunities. Okay, ये सारी opportunities के ऊपर से अगर आप देखोगे तो there are various kind of pharmacy options, but the majority career options you can think is the license related. क्योंकि लाइसेंस रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज यूनिक भी होती है, सिर्फ फार्मेसी के बच्चों के लिए होती है, इसीलिए यू कैन थिंक अबाउट द लाइसेंस एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ओके, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज तो है अपॉर्चुनिटी, but what do you think after few years? Okay, so after few years we can think these 7 different factors are clearly indicating the future of pharmacist is very bright. The first one is the increasing older population. Elderly populations is continuously increasing. Second is onset of chronic diseases early. पहले क्या हुआ करता था, 50 साल के बाद ही किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स आते थे.
अभी वो 30 इयर्स की एज पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और ये सारे chronic diseases has been started. Polypharmacy means the patients are taking more medications. Because of that, the patients are getting medication related issues. उससे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ती है इंडिविजुअल की और ओवरऑल गवर्नमेंट की. तो यहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी भी ओपन हुई है जिसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक्स. तो फार्माको इकोनॉमिस्ट, अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हेल्थ में इंटरेस्ट है और उसको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करना है, तो फार्माको इकोनॉमिकल रिसर्च is one of the best opportunities in pretty much all the developed country. और सबसे इंपॉर्टेंट है स्केर्सिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और देखा है कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम एवरीबॉडी, ऑल द डेवलप्ड कंट्री, दे वेर सफरिंग दिस प्रॉब्लम. एंड फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ रही है. उसका मतलब अगर आप 20 साल पीछे जाइए, अगर आप 20-30 इयर्स बैक जाओगे तो फार्मासिस्ट वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिकेशंस. But nowadays, continuously pharmacy profession is expanding. So medication management में वो involved है, immunization में involved है, disease state management में involved है. They are also in a prescribing authority. तो आने वाले समय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ेगी. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी उतनी अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी. इसीलिए फार्मेसी इज अ वेरी डायनेमिक प्रोफेशन. अगर ये 2-3 स्लाइड से अगर आप प्लान करो तो आपको एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि फार्मासिस्ट इज इन डिमांड एंड फार्मासिस्ट विल बी इन डिमांड. Pharmacist is not only limited in the clinical area, but pharmacist can work in all other areas as well. So ये सारी डिमांड है, उससे आपको कुछ प्रीमियम भी तो मिलना चाहिए. तो these are the premiums you will get because as a pharmacist easy to get employment. अभी आप किसी भी देश में देखोगे तो pharmacist is in demand and that's why easily he get opportunity for employment. फार्मासिस्ट की सैलरी देखोगे तो एवरेज जो देश की सैलरी होती है उससे काफी ज्यादा है. मतलब अगर आप एवरेज सैलरी ऑफ द कंट्री is $65,000-$70,000, pharmacist is earning $1,25,000-$1,30,000. That means the pharmacist is really getting a huge amount higher than the average people getting. अगर आपने लाइसेंस कर लिया है, you have a great opportunity to start your own business. Pharmacist is in demand. That's why it's easy to get permanent residency. Every country has a great opportunities to get PR on based upon your pharmacist license. Social respect है क्योंकि everybody is giving respect to the pharmacist because he is the front. जो हेल्थ के फ्रंटियर्स है उसमें फार्मासिस्ट ऑलवेज कम्युनिटी के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है. और आप लोग भी जैसे फार्मेसी में काम करते हो तो यू गेट मोर जॉब सेटिस्फैक्शन बिकॉज एवरी डे यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, योर कॉग्निटिव नॉलेज, योर एक्सपर्टी, योर फार्मेसी अंडरस्टैंडिंग फॉर betterment of the society. Okay. And also you feel the sense of responsibilities. So these are the points always you have to keep in mind while you are selecting the profession. I hope आपको कुछ यहाँ तक समझ आया होगा. Okay. अगर if that makes sense, I think आपको ये रिस्पॉन्स करना है कि कैसा लग रहा है आपको अभी तक जो हमने वेबिनार कवर किया उसमें. व्हाट डू यू थिंक? मेकिंग वैल्यूएबल सेंस इन योर थॉट प्रोसेस. तो हम एक लाइन अप कर सके, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में ला सके कि ओके दैट्स मेकिंग सेंस टू यू और नॉट एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन वी कैन डू. Good. Thank you very much. Thanks. It's more than 80% of the students, they have given the 5-star to so far, whatever we have covered. That's really good. Good response. Thank you. Thanks. Still, I'm expecting a few more, like it's majority of the students can give the response. So I can make a judgment about it's we are on the same platform or not. Okay. Good. Okay. Thank you very much. And that was like great result. I can move to the next part. That's
Okay. This visible to you? Screen is visible? Okay. So, country selection. After getting the understanding about the things, country selection is the very important. तो अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि फार्मासिस्ट सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड नहीं है, फार्मासिस्ट बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमें उसको अपनी कस्टमाइजेशन में लेना है। ओके, तो कौन सा कंट्री सिलेक्ट करना चाहिए? जनरली अगर हम ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें तो कंट्री सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। पहले तो कौन कौन से देश में जाना चाहिए? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड। ये देश आपके लिए बेहतर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स आर प्रेफर टू गो इन दिस कंट्रीज ओनली। अब सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल कंडीशन। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द वेरी वेल्दी बैकग्राउंड, बहुत अच्छे फैमिली से आ रहे हो, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्सपोजर के लिए जाना है, तो आप यूएस को सिलेक्ट कर सकते हो, यूके को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मुझे बाहर पढ़ने जाना है और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे इमिग्रेशन चाहिए, मुझे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए और वहां पे रुकना जरूरी है मेरे लिए। इन दैट सिचुएशन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट यूएस एंड यूके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो सिचुएशन में आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना चाहिए। तो सिलेक्शन का पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू आर प्लानिंग टू गो, योर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पीआर के लिए जाना है, सिर्फ और सिर्फ पीआर के लिए, और दूसरा मुझे पीआर के साथ साथ में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी चाहिए, तो वो सिचुएशन में आप ऑस्ट्रेलिया को पसंद कर सकते हो। सिर्फ पीआर विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कनाडा को प्रेफर कर सकते हो। तो पहले सेपरेट कर दिया हमने पीआर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। उसमें से आपके पास दो कंट्री आए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी फैमिली के पास सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में है, मतलब इनकम के डॉक्यूमेंट्स, फंड के डॉक्यूमेंट्स, आपके पापा अगर जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस है, सारी चीजें सही तरीके से है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, सब डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हो। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपके पास पैसे तो है, पर ये सारे पेपर्स उतने कॉम्प्लिकेटेड, जो पेपर्स है वो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप कनाडा के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद आपको ये सोचना है कि मुझे फार्मासिस्ट ही बनना है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए सोच सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फार्मासिस्ट के साथ साथ में अगर नहीं होता है मुझसे लाइसेंस, तो आई एम रेडी टू वर्क इन अदर डोमेन्स, तो वो सिचुएशन में कनाडा भी ऑप्शन में रख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स है जिसके रिलेटिव्स या तो फैमिली यूएस में है और उसको डायरेक्ट यूएस जाना है, वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिल सकती है, उसके अंकल ही वहां पे है, ही कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ही इज गोइंग टू हेल्प टू गेट द H1, सब कुछ मिलवाने में मदद कर सकते हैं, तो आप यूएस जा सकते हैं। Some of the students are very very focused on their study. They want to study particularly research related subjects, like जैसे कि उसको न्यूरो साइंस पढ़ना है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है, उसको कार्डियोवेस्कुलर पढ़ना है और उसको साइंटिस्ट ही बनना है। दे हैव अ वेरी फैबुलस गुड इंग्लिश एंड दे हैव वेरी गुड एकेडमिक्स एंड बहुत स्टूडियस है, तो 110% उसको यूके ही जाना चाहिए, क्योंकि यूके में आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज मिलेगी। अगर आपको एक सिंपल सी चीज समझाऊं, तो वर्ल्ड की जो टोटल फार्मास्यूटिकल मार्केट है, उसमें वैल्यूज वाइज और वॉल्यूम वाइज दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो अगर वैल्यू वाइज देखें तो यूरोप इज द 74% मार्केट शेयर है उसका, वैल्यू वाइज। और वॉल्यूम वाइड देखें तो इंडिया, ब्राजील, चाइना एंड रशिया, these four countries are manufacturing majority and maximum number of dosage forms for the world. यहां से क्या कंक्लूड निकलता है? हम लोग बनाते हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर मोर
कॉस्ट इफेक्टिव सस्ती प्रोडक्ट बनाते हैं, और यूरोप जो बनाता है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म सस्ते होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। अगर आप यूके जाना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, या तो आप उसके रिलेवेंट रिसर्च के सब्जेक्ट्स में पढ़ने के लिए जाइए, और डोंट लिमिट योरसेल्फ इनटू यूके ओनली, यू कैन एक्सपेंड योर थिंग्स टू स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन और नेदरलैंड। ये सारे कंट्रीज जो है वो, आप अगर यूके की अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो आप इजीली ये सारे कंट्रीज में माइग्रेट कर सकते हो, जा सकते हो, एंड यू कैन फाइंड अ गुड जॉब। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप मिक्स करके कंट्री सिलेक्शन आपके हिसाब से करो, नहीं कि लोगों के हिसाब से। ओके, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली फार्मा विजन कैन हेल्प यू फॉर मेकिंग योर कंट्री सिलेक्शन एंड कोर्स सिलेक्शन, और लॉन्ग टर्म करियर के लिए हम आपको मदद करने के लिए रेडी। आयरलैंड छोटा कंट्री है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में बहुत लीडिंग पोजीशन पर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप वहां पे पढ़ने के लिए जाओगे, इमिग्रेशन पॉलिसीज थोड़ी सी भी चेंज होती है, तो वी आर ऑन द वल्नरेबल सिचुएशन। इसीलिए आयरलैंड इज अ गुड कंट्री टू गो, पर उसके ऊपर हम उतना रिस्क लेना या नहीं लेना, दैट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर द कंट्री सिलेक्शन। उसको हम सिंपल बना दे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए। अगर आपको पीआर नहीं मिलती है, आप इंडिया वापस आके यहाँ पे आपकी फैमिली बिजनेस या सब कुछ चीजों को अडॉप्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए यूएस। अगर आप 100% सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च में ही करियर बनाना है, और अपकमिंग वही अपॉर्चुनिटी में आपको ग्रो करना है, तो यूके इज द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड, अगर कोई स्टूडेंट्स है कि जिसको टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ को कंबाइन करना है, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आगे बढ़ना है, ओके, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएस के बारे में सोचना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको क्या सोचना है कि मुझे पीआर ही चाहिए, कम से कम खर्चा पीआर चाहिए, और अगर मैं पीबीसी नहीं कर सकता हूँ, फार्मेसी की लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं वहां पे पीआर और सेटल हो जाऊं, तो कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझे पीआर चाहिए, मैं लाइसेंस करने के लिए रेडी हूं, और वेदर कंडीशन अच्छी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट से मेरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, और सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रोक्योर मतलब प्रेजेंट कर सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री टू गो। थोड़े से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, और खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आयरलैंड के बारे में सोच सकते हो। These are the key points you have to keep in mind for the country selection. I hope आपको समझ आया होगा यहाँ, ये जो पार्ट है वहां तक। ओके, अभी बात करते हैं लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस के बारे में। उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि लाइसेंसिंग एग्जाम्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो देखना जरूरी है। ओके, आपका व्यूज खाली भेजना है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो वो हिसाब से आपके क्वेश्चंस ज्यादातर अभी okay 90% of the students are saying they are interested to become registered pharmacist बनना है उसे, that's really good numbers। okay, उसका मीनिंग ये होता है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में तो मुझे 100% सोचना ही चाहिए। गुड, good. Majority of the students are saying they are willing to become registered pharmacists. That's a really good sign, and वही करना चाहिए आइडियली। ओके, साथ साथ में आपको बाकी की जो प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना चाहिए, बट डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो रिजल्ट आपने जो दिखाए हैं, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। ओके, गुड, सो लेट्स अगेन वी कैन मूव टू दिस पार्ट। Okay, now about the licensing exam, ये स्क्रीन आपको विजिबल होती होगी, तो इसको ओके, फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, आप में से 90% स्टूडेंट्स है जो इंटरेस्टेड है लाइसेंसिंग एग्जाम्स के बारे में,
तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की ट्राई करता हूं मैं। किसी भी देश में अगर आपको लाइसेंस फार्मासिस्ट बनना है, तो the board of that particular country has defined certain kind of competency standards. They are expecting the candidates should have to meet minimum level of competency standards to work as a pharmacist. वो जो competency का list है, वो हर एक देश में से common करे तो ये 9 competency standards है। इन दिस 9 competency standards को evaluate करना है। उसका मतलब ये होता है कि आप में ये सारी कॉम्पिटेंसीज है या नहीं है, वो टेस्ट करना है। वो टेस्ट करने के लिए उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड करके। पहली जो एग्जाम है दैट इज इवैल्यूएटिंग एग्जाम, और सेकंड जो एग्जाम है उसको क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर ये दोनों एग्जाम्स को मर्ज करें तो टोटल 3 टाइप की एग्जाम्स वो कंडक्ट करते हैं, और on based upon that they are making a judgment you are competent enough to work as a pharmacist in our country. Okay, ये मोटा मोटा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आप अगर किसी भी देश की एग्जाम की पैटर्न देखोगे तो सेम सॉर्ट ऑफ एग्जाम पैटर्न्स है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। तो ये किसी भी देश में सबसे पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, दूसरा स्टेप होता है इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन लाइक एफपीजी, जैसे यूएस में है, पीईबीसी इवैल्यूएटिंग एग्जाम कनाडा में, केपीएस इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्पेप इज नॉट एग्जाम, ऑस्पेप इज अ प्रोग्राम। ओके, तो आपको 1 साल का प्रोग्राम पढ़ना है यूके में। आप ये सारी चीजें जैसे स्टेज 1 खत्म कर लेते हो, यू आर कंसिडर एज इक्विवेलेंट एज द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। उसके बाद का जो स्टेज आता है वो कॉमन होता है आपके लिए एज वेल एज ऑल द डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। तो फार्मासिस्ट का इंटर्न एज ए इंटर्नशिप करना है। उसके बाद यूएस में आप ड्यूरिंग द इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के साथ में एफपीजी खत्म करने के बाद नेप्लेक्स एंड एमपीजी लिख सकते हो। ओके, टॉफल आईबीटी यूएस में सबसे पहले करना है, उसके बाद ही आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं जनरलाइज करने के लिए फॉर्मेट में लिखा है, हर एक कंट्री में ऊपर नीचे हो सकता है, तो करना यही है। ओके, ऊपर नीचे हो सकता है, करना तो यही फॉलो करना है प्रोटोकॉल को। कनाडा में आपको पीबीसी इंटर्नशिप करने से पहले आप ओस्की एंड एमसीक्यू लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। जब आप लाइसेंस लेने जाओगे तभी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट करना है। ऑस्ट्रेलिया में आप एपीसी के पास से असेसमेंट करके केपीएस की एग्जाम पास करोगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप ही करना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद ये सीएओपी एग्जाम नहीं है, इंटर्न ओरल इंटर्न रिटन एग्जाम है, तो ये लिखनी है। और ये आईएलटीएस जो है वो इंटर्नशिप करने से पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देनी है। ओके, यूके में ये आप जैसे जीपीएससी से असेसमेंट करवा के ओस्पेप की पढ़ाई कर ली, इंटर्नशिप करके फिर जीपीएससी की एग्जाम लिखनी है, वहां की जनरल फार्मासिस्ट काउंसिल की एग्जाम। तो ये कॉम्प्लेक्स में मत पढ़ो, इतना समझो किसी भी देश में फार्मासिस्ट बनना है तो टोटल 5 स्टेजेस है। एक तो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन है, एक लैंग्वेज प्रूव करना है, इवैल्यूएटिंग एग्जाम लिखनी है, इंटर्नशिप करनी है एंड क्वालिफाइंग एग्जाम लिखनी है। फिर वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है। और ये पूरी प्रोसेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो कैंडिडेट लाइसेंस लेना चाहता है उसके अंदर ये 9 कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। अगर ये 9 कॉम्पिटेंसीज है तभी आप वहां पे फार्मासिस्ट बन सकते हो। दैट इज द वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल थिंग्स। एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारा डर भी फैला हुआ है। ओके, तो हम उसको क्लीन करने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जैसे इंडियन सिलेबस जो है हमारा फार्मेसी का, दैट इज डिजाइन मोर टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो 21% ही हम क्लिनिकल फार्मेसी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, और वहां की जो पढ़ाई है उसमें अराउंड अबाउट 80% क्लिनिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे इंडिया में हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर्स अंडरग्रेड में बी फार्मा वाले बच्चों को नहीं, वहां पे ड्यूरिंग स्टडी बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपोजर्स है, तो इसीलिए क्लिनिकल साइंस जो है वो हमारा थोड़ा सा वीक रहता है। और दूसरा, हमारी जो पढ़ाई की सिस्टम है वो पढ़ाई के सिस्टम में हम फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फिर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फिर क्लिनिकल पढ़ते हैं। तो एक जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक जो लिंक होनी चाहिए वो मिस हो जाती है।
और हम डिजीज कंडीशन जैसे रियल लाइफ में देखें तो हाइपरटेंशन का पेशेंट अकेला हाइपरटेंशन का नहीं होता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को साथ में डायबिटीज भी होती है। ओके, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन भी नहीं करते, इस तरह से हमारी केस स्टडीज, रियल लाइफ सिचुएशंस और क्लिनिकल स्टडीज वीक होती है। और ये जो एग्जाम्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लिनिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब आपकी पेशेंट केयर की जो स्किल्स है उसको इवैल्यूएट करते हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव अ गुड रिसर्च एबिलिटीज, और ये सारी चीजों की ये एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्स इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज अ फार्मासिस्ट इन रिटेल और इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। ओके, तो आपको सबसे पहले क्लिनिकल की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आपकी लर्निंग प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाना है, इंटीग्रेटेड बनाना है कि आप न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़िए, न्यूरो हार्मोनल फिजियोलॉजी के बाद नॉर्मल फंक्शनल फिजियोलॉजी पढ़िए, उसके बाद आप उसकी एनाटॉमी को देख लीजिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज, देन द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक बार कंप्लीट होने के बाद क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। अगर आप इसी प्रोग्रेसिव स्टेज से पढ़ेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। और हमारा जो फार्मा विजन का जो कोर्स है, यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स को कवर करके इट्स ऑर्गेनाइज्ड इन मोर साइंटिफिक वे, तो आपका जो पढ़ाई है इज गोइंग टू बिकम मोर इंटरेस्टिंग और मोर इफेक्टिव। हमारा अल्टीमेट इंटरेस्ट इतना ही होता है कि आपका एग्जाम के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट बने, आपकी लर्निंग प्रोसेस मीनिंगफुल रहे और आपका पूरे फार्मेसी के तरफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे, और अल्टीमेटली आप लर्न करो, उसके साथ मेमोराइज भी करो और उसको अप्लाई करना भी सीखो। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डू, एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग यू द कोचिंग फॉर दिस थिंग्स। ओके, तो ये जो पूरी कोचिंग है उसमें हम 6 अलग अलग एरियाज को कवर करवाते हैं, मतलब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, जो बच्चों की फार्मा जो क्लिनिकल फार्मेसी वीक है उसको फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करना है, तो पहला जो स्टेप है दैट्स अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यहां से पढ़ाई करनी चालू है। ये सिर्फ 4 पेज में, 4 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और पूरा इंफोग्राफिकली ऑर्गेनाइज्ड है। तो एक पूरी फिगर होगी, उसके ऊपर में आपको 45 मिनट से 50 मिनट्स का एक लेक्चर लूंगा, उसमें सारी चीजें मैं समझा देता हूं आपको, और फिर 4 पेज उसके जो क्लास में समझाया है उसके रिलेटेड आपको एक क्लास नोट मिल जाएगी 4 पेज में। अगर आप इतना पढ़ाई कर लोगे, मतलब 1 घंटे के करीब करीब आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको 50 क्वेश्चंस उसके नीचे मिल जाएंगे, तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा। जैसे आप हार्ट फेल्योर है, तो अगर आपने 2 घंटे लगाए तो हार्ट फेल्योर में मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि यू विल फील कंफर्टेबल about getting any kind of questions in related to heart failure. Okay, अब ये सभी बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन स्पेशली ये किसके लिए अच्छा है? जिसकी फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइंस वीक है, ऐसे बच्चों के लिए, जिसको बहुत लंबा गैप है, उसके लिए ये पहला कोर्स बहुत जरूरी है। और जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और उसको अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी है, उसके लिए तो ये वरदान है, ऐसा समझो। क्योंकि फार्माकोलॉजी का अगर आपकी एग्जाम का क्वेश्चन आया, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम का क्वेश्चन, तो आपने अगर ये 2 घंटे में आपने हार्ट फेल्योर की पढ़ाई कर ली, तो मैं 100% आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि आपको अगर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछते हार्ट फेल्योर का, तो आपके जितना इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने नहीं लिखा होगा। ओके, तो ऐसे बच्चों को पहले फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करके फिर क्लिनिकल साइंस में आना है, क्लिनिकल साइंस के बाद उसको फार्मेसी प्रैक्टिस उसमें ही इन्वॉल्व है, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पहले क्यों पढ़ना है कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल साइंस? अगर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पे आपको थ्योरी को प्रैक्टिकली कनेक्ट करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे जिसमें सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज को जब डिसोशिएट करते हैं, तो डिसोसिएशन डेक्सट्रोज का नहीं होता है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ डेक्सट्रोज इज गिविंग द वन पावर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंड्यूसर्स, और NaCl डिवाइड होकर 2 पार्टिकल्स को भेजता है, इसीलिए दैट कैन डबल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपेयर टू डेक्सट्रोज। तो आप उसको विजुलाइज कर पाओगे, आप समझ पाओगे, और आपकी जो फार्मास्यूटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी।
तो सारे देश के लिए कॉमन हो गया। जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा जो स्टूडेंट्स कनाडा और यूएस के बारे में सोचते, उसको एक और सब्जेक्ट पढ़ना है, बिहेवियरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल साइंस। ये दोनों के लिए कॉमन है। सिर्फ कनाडा और यूएस में ये जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ 3-4 चैप्टर्स में डिफरेंट है। यहाँ पे आपको यूएस की हेल्थ केयर सिस्टम पढ़नी है, यहाँ पे कनाडा की पढ़नी, वहां पे यूएस के लॉ पढ़ने, यहाँ पे कनाडा के लॉ पढ़ने, बस उतना ही डिफरेंट है। बाकी बिहेवियरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल साइंस बाकी का कंपोनेंट कॉमन है। ओके, तो फार्मा विजन कैन हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, और उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल पास द एग्जाम। और ये पूरी जो इकोसिस्टम है लर्निंग की, वो इस तरह से है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी प्लान, उसके बाद लर्निंग पाथवेज। तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट कैसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए। पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑटोनोमिक के बाद आप कार्डियोवैस्कुलर पढ़ोगे तो इट्स बिकम मोर इफेक्टिव। अगर आपने स्टीरॉइड्स की पढ़ाई की तो स्टीरॉइड्स के बाद आपको एड्रिनल ही पढ़ना चाहिए। ओके, और गायनिक पढ़ने से पहले आपको सेक्स स्टीरॉइड्स के बारे में पढ़ लेना जरूरी है। तो ये पूरे चैप्टर्स यही फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है हमारे एलएमएस में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। आपको बहुत ही इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग रिसोर्सेस मटेरियल्स दिया जाता है, इन्फोग्राफिक्स और सारी चीजें बहुत आपकी जो पढ़ाई है उसको इजी करने में मदद करती है। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि कंसाइज, जितना छोटा मटेरियल होगा उतना बच्चा पढ़ेगा, उससे ज्यादा सोचेगा। इसलिए मैं हमेशा यही बोलूंगा, आपको पूरे क्लास में यही बताऊंगा कि रीड लेस थिंक मोर, रीड लेस थिंक मोर। क्योंकि आप थिंक ज्यादा करो, एग्जाम आपको थिंक करने के लिए इंस्पायर करेगी। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोस क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, दोस आर द लॉजिकल क्वेश्चंस। इसीलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कम पढ़ो ज्यादा सोचो, कम पढ़ो ज्यादा सोचो। आपको लाइव प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगी, क्वेश्चंस बैंक मिलेगी, कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलेगा, और बहुत सारी चीजें आपको नेटवर्किंग के थ्रू भी आप कनेक्ट करोगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जैसे फार्मा विजन में मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंडिया में होते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस में होते हैं, उसके साथ एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग होता है। दैट नेटवर्किंग कैन हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर। और हर एक थोड़े टाइम के बाद हम एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन रखते हैं। जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास की है उसका एक सेशन होता है, he is explaining what kind of mistakes he has made, what kind of things he has done, what kind of things the prospective students have to keep in mind while the preparation। तो इस तरह से एक पूरी लर्निंग इकोसिस्टम बनाई है ताकि आपकी पास होने की संभावनाएं बढ़ सके। और दिस आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। एक तो हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे, आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल कुछ देंगे, डाउनलोड मटेरियल्स देंगे, लाइव टेस्ट और बहुत सारी चीजें यू विल गेट, and on based upon that you can continuously prepare for your exam। okay, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि लाइसेंसिंग एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके, और वाई फार्मा विजन मुझे कुछ डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। फार्मा विजन इज ऑपरेटिंग एंड रनिंग बाय द फार्मासिस्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, फार्मा विजन इज स्पेशलाइज्ड फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स। तीसरा जो है, आप जो जर्नी ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, मतलब आप एज ए स्टूडेंट्स जाना चाहते हो, वहां पे फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, सिटीजनशिप लेना चाहते हो, वो सारी जर्नी में तय कर चुका हूं। उतना ही नहीं, आपके जैसे 2000 से भी ज्यादा बच्चों को ये जर्नी में ट्रैवल करवा चुका हूं। वो जो 2000 से ज्यादा बच्चे करंटली दे आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट एंड रनिंग देयर ओन फार्मेसी। सो फार्मा विजन हैज अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और कंटिन्यूअसली वी आर अपडेटिंग अवरसेल्फ। ओके, इसीलिए फार्मा विजन को ज्वाइन करोगे आप तो यू गेट वेरी गुड हैंड होल्डिंग्स। उससे आगे अगर बात करें तो फार्मा विजन इज प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिक सर्विसेज। वन इज द कैरियर कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसमें हम आपको करियर प्लानिंग, एडमिशन, वीजा, ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस करेंगे। जो स्टूडेंट्स को लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, ऐसे स्टूडेंट्स को वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज लाइक डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, एग्जाम प्रिपरेशन, उसका स्टडी मटेरियल, उसके रिलेवेंट नेटवर्किंग, मेंटरिंग,
सो ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज है, उसके प्राइसिंग्स, वो बहुत सारी चीजें मैम यहाँ पे जो हमारी टीम है वो टीम आपको गाइड करेगी और बताएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मा विजन के साथ काउंसलिंग कर चुके हैं तो उसको कुछ पता भी होगा। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने हैं। जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, फार्म डी कर रहे हो या तो बी फार्मा कर रहे हो, उसको मेरा एक अलग से स्पेशल एक्सेस भी रहता है कि उसकी प्रोफाइल बिल्डिंग में मैं हेल्प करता हूँ। जैसे कौन से रिसर्च टॉपिक्स में उसको थीसिस लिखनी चाहिए, अगर उसको स्पेयर टाइम मिलता है तो उसको क्या और लर्न करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके वो अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेसर के साथ कैसे अपनी नेटवर्किंग को बनाए, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प। अगर किसी स्टूडेंट्स को फार्मा विजन की बारे में पता नहीं या तो फिजिकली नहीं आए हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम टू अवर ऑफिस इन अहमदाबाद, दे कैन गिव अस ए कॉल। ये कुछ कांटेक्ट डिटेल्स है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसमें आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। अवर टीम इज रेडी टू हेल्प यू आउट। यू कैन ज्वाइन अवर सोशल मीडिया, वहां से हम बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं ताकि आप वहां से भी कुछ अंडरस्टैंड कर पाओ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेश्चंस यू कैन सेंड अस एन ईमेल। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम आपको क्वेश्चन आंसर्स में मूव करें उससे पहले वी कैन थिंक अबाउट आपका जो मेन पॉइंट्स है कि ये जो वेबिनार है उससे आपको क्या लगा, दैट्स एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, और इट्स किस तरह से आप उसको जज करते हो। इट्स इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, दैट्स गुड। Majority of the students are saying it's very informative, and it's a good number of students are saying informative. So ultimately that adds some more value in your career, in your decision making process. That would be great. And still I'm expecting some of the students can give the response, so that would be making sense to me. Okay, that's fine. Good, thank you very much. Thanks. Okay, thank you very much. Majority of the students said is very informative, and thank you for your response. Now, if any of the students, those after these things, what do you think? You think the Pharma Vision, are you interested to join at this point of time? और आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन नहीं आएगी, अभी ज्वाइन नहीं करना है? ओके, गुड। ओके, good, good. Your response is making us more energetic about the things. 95% students are saying they are interested to join. That's good, really good. Okay. Still, I'm expecting some few more responses, like only 2-3 responses are left. Okay. Thank you very much for your response to us. Good. Now, we move to the question and answer session. Whatever questions you have, you just have to drop your questions here, and I'm trying to give the answers. Okay, I'm from the Tamil Nadu. I didn't understand Hindi. Okay, that's the good point actually. The whatever points I am going to cover here is in English. So like today's session is pretty much in English, but if you are interested to buy our learning management system, the majority of the concepts I have explained in dual language, English and Hindi. Okay, but when we are talking about the scientific learning and philosophy, or the information, just like today what we are doing is the information, but when I'm teaching you something, in that situation you have to focus on the main key elements and key points. Okay, so like so many of our Tamil Nadu and Kerala students,
they feel comfortable about the course. But yes, that is true. Course is mainly focused on the majority of the students. They can understand the concept much in a better way. Mary, this is my philosophy. I'm not trying to impress you. I'm trying to inform you. Okay, so if I'm going to make it more complicated, then the students are getting confused and they are not going to immerse the information. That's why I have make it as simple as possible, all the learning concepts. But if you are interested only for the consultancy part, you are not going to feel any difficulty in Hindi and English. Okay, you are going to be taken care by everything. Okay, if like some of the students, they have written, if you are going to do your masters from that particular country, are you getting exemption for the license? No, you cannot, because license is required to practice as a pharmacist. But if you are interested to work in research, or if you are interested to work in any kind of uh, like industrial section, then you don't need a license. Okay, and your masters or whatever study you are going to do from that country, that can lead you towards the industrial or all other opportunities. But if you are planning to get into hospitals or community pharmacy, you must have to get license. Without license, you cannot work, and your masters in that country is not going to allow you to practice as a pharmacist. Okay, that is like a general question is very specific about have you completed your APC document evaluation process? Did you haven't received anything? Okay, so it's better you can start taking follow-up. I think you will be eligible to appear for the exam. Okay, once you get your APC document evaluation, you have to immediately you have to process for the exam registration, and you can make it, but थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा follow. Okay, PPT ये seminar those students who required बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, अगर नहीं आ पाए या तो आपको इसका रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. Okay, any facilities, like what kind of facilities you are expecting to get? These the lectures. Uh, Normally, the whatever lectures we are conducting, there's a live sessions. Those who want to attend the live class, they can join at the same time. And the most important thing is the students can get the LMS. Means वो आपको recorded videos है, आपके पास पूरी system है, learning plan है, everything is there. आप अपनी पेस से अपने टाइम से उसको पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड से भी पढ़ सकते हो. अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हैं तो यू कैन मेक इट 2x स्पीड से उसको अगर पढ़ोगे तो टाइम भी बचेगा एंड यू कैन मैनेज इट. ओके ओके, ये कॉपी ऑफ दिस वेबिनार ये मिल जाएगा, डोंट वरी. करियर एस्पेक्ट आफ्टर क्लियरिंग पीवीसी. आपने पीवीसी क्लियर कर लिया, फार्मासिस्ट बन गए. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अभी 3-4 फार्मेसी ओन कर रहे हैं. तो आप समझो 3-4 फार्मेसी ओन करना मतलब $1 मिलियन के करीब करीब कमाना. ओके, तो एक तो ये कैरियर है. दूसरा ये है कि अगर आपको क्लिनिकल में जाना है, आप हॉस्पिटल में जा सकते हो. अगर आपको बिजनेस नहीं करना है, आप डायबिटिक एजुकेटर बन सकते हो. आप बहुत सारे और कैरियर ऑप्शंस में जा सकते हो, दैट्स स्पेसिफिक टू पीवीसी. अगर पीवीसी नहीं क्लियर करते हो तो आपके पास इंडस्ट्रियल और बाकी सारे ऑप्शंस. Okay, that is very interesting question. The first we have to do the pharmacy technician, and then we have to get the PR, and after that we have to do the pharmacist. Do you think this is a good option? Okay, that is good option, but not the best option, because you are wasting your 2 years of lifespan, because technician is earning $50,000 and pharmacist is earning more than $1 lakh. Okay, so ideally, when you are studying your pharmacy technician program, simultaneously you can start doing your PBC pharmacist. That means by the time you complete your pharmacy technician course, you become
the registered pharmacist. That means you are going to make more money with less amount of time. Okay, मीत का क्वेश्चन है कि सर यूके इज द बेस्ट और कनाडा इज द बेस्ट, एप्पल इज द बेस्ट और ऑरेंज इज द बेस्ट? There is no point of comparison of these two things. Okay, so like this kind of questions when you are asking, that means you are putting your career on risk of somebody's decisions. As I have clearly mentioned about the things, if you are planning to go to UK, you have two possibilities. Either you don't have a good IELTS bench score, but you are very good in English, okay, sorry, very good in academics, and your prospective career option is the research, then the UK is the best option. If you have a less confidence, average marks, little bit average English like 6 not less than 6 or 6.5 not less than 6, and PR is your prime motto, then the Canada is the best option. अगर आपका IELTS नहीं है, कनाडा में 2-3 बार रिजेक्शन हुआ है, तो आप यूके के लिए सोच सकते हो. अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और रिसर्च ओरिएंटेड है, तो यूके को सोच सकते हो. Okay, which course is popular in Australia? Which course is popular in Australia? Popular है public health and master of pharmacy. But आपको ये करना नहीं चाहिए. Okay, that is a specialty that we do have. वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप KPS नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे. इसीलिए you have to select the right program in Australia. अगर आप नहीं कर पाते हो तो you have 5 more options to get the permanent residency. That's why the course selection is very important, and PharmaVision is expert in that part. Okay, so we are going to help you for that as well. Port passing ratio of PBC from PharmaVision. PharmaVision में से जितने बच्चों ने एग्जाम लिखी है, उसमें से around about 75 to 80% students are passing the exam. Okay, but ज्यादातर students drop कर देते, नहीं लिखते हैं. That's the main problem. Okay, can I write KPS? Yes, KPS आप इंडिया से लिख सकते हो. Okay, if you are pursuing your masters in analysis, definitely you can go to UK. That's a good point. What is the question? Answer my question. Matlab, answer my question, please. What's the question? Like question answer session is at the end, so you have to type the questions again. And now I'm going through, so I don't know is supposed to answer my question, please. 12+3 DPharm eligible in Canada is pharmacy assistant. Yes, definitely pharmacy. For pharmacy assistant, you don't need any kind of specific qualification. But if you are interested to become pharmacist, also you are qualified if you have diploma and then bachelor of pharmacy. Okay, but 12+3 DPharm, this candidate is eligible for pharmacy assistant. Definitely they can work. Okay, PharmaVision ka PBC passing ratio is very high, as I have mentioned. Still having difficulty to know which country should I go. Then you have to personally come and meet me. I can get your points and I can help you out. Okay. There is no like a very crystal clear points. If you are not clear about what you want to do in your life and what are your personal circumstances, nobody is going to help you out. How you have to make a decisions. PR is important, then Canada and Australia is the best country. Only studying is important. PR अगर नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, तो आप यूके एंड यूएस के बारे में सोच सकते हो. आपके फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, अच्छा पढ़ना चाहते हो, आपको केपीएस लाइसेंसिंग एग्जाम्स के ऊपर फोकस है, आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हो. अब ये एक जेनरिक में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट्स कर रहा हूँ. ओके, इसीलिए अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट. आई एम अवेलेबल हियर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, एंड प्रायर अपॉइंटमेंट के बाद आप मुझसे मिलके आई कैन गिव यू द पर्सनल गाइडेंस आपके कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में. Okay, pharma related jobs. How to start my professional career? Done my masters in chemistry.
ओके आपने केमिस्ट्री में किया है, ड्रग डिजाइनिंग में भी जा सकते हो, एनालिसिस में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो। तो स्टार्ट वहां पे, अगर आपको पीआर मिल जाता है कनाडा में, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एज ए एनालिस्ट, आप अप्लाई करना चालू करो। तो 99% chances है you will get a good job, and don't limit only in one particular area. Okay, one of our student, he was working for the gold mine. He has done his pharmacy. Okay, and he has studied pharmaceutical science program, and he has applied as an analyst. तो उसको $1,43,000 he was earning. तो आप लिमिट मत करो खुद को, आप एज ए एनालिस्ट या तो एज ए इंडस्ट्रियल केमिस्ट प्रोजेक्ट करो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। Okay, if I want to study PharmD after B.Pharm, how could I move? आप कर सकते हो, इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है, बी फार्मा के बाद फार्मडी 3 साल पढ़ना है। ओके, अगर आप बाकी के कंट्रीज में जाना चाहते हो तो आपका बी फार्म ही वैलिड है, तो आपको फार्मडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूएस जाना चाहते हो और यूएस में अगर फार्मडी करना चाहते हो तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज 3 साल का ऑफर करती है, कुछ यूनिवर्सिटी 4 साल का ऑफर करती है। ओके, 3 साल का प्रोग्राम अगर ऑफर करती है तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू मीट सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स, सर्टेन कोर्सेज यू हैव टू कंप्लीट, एंड देन यू कैन गेट इनटू इट। बट अगर आप 4 साल के कोर्स में जाना चाहते हो तो दैट्स डजंट required any prerequisite. Most of the institutes can offer 4 years PharmD program, लेकिन it's very expensive. ओके, आप यहाँ पे एमफार्म कर रहे हो, 1 ईयर आपका हो गया है और मूव करना चाहते हो तो अभी से छोड़ देना चाहिए। आइडियली डिपेंड है, अगर आपका 1 साल खत्म हो गया है, सेकेंड ईयर आपका कब खत्म हो रहा है, 4-5 महीने का ही गैप रहता है, तो छोड़िए मत, तो एमफार्म खत्म कर लीजिए एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट। और ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एफपीजी के लिए आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फ्रॉम इंडिया से कर सकते हो। ओके, एज लॉन्ग एज आपके पास टॉफल आईबीटी का स्कोर अगर रेडी है और वो भी यूएस या तो कनाडा से लिखी हुई एग्जाम, टॉफल आईबीटी, तो आप डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के लिए आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन भेजने हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इज योर टॉफल आईबीटी शुड बी रेडी, और वो भी टॉफल कहां से लिखी होनी चाहिए, या तो कनाडा या तो यूएस के कुछ स्पेसिफिक सेंटर से। इसीलिए दिस इज लाइक tricky points. So those students who have a H1 like family migration visa, or those students who have a green card and they are coming to India and studying, or some of the students have a visitor visa, उसको क्या करना चाहिए, आइडियली उसको बीच में एक बार यूएस जाके टॉफल लिख दे, टॉफल लिखने के बाद वो वापस आ जाए, क्योंकि टॉफल की वैलिडिटी 2 साल की रहती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस। वेटिंग योर आंसर क्वेश्चंस, ये जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर लास्ट में होता है। ओके, तो अभी आपको टाइप करना पड़ेगा क्वेश्चन, अगर नहीं आंसर आया तो। विच कंट्री इज बेस्ट फॉर फार्म डी? आइडियली फार्म डी के लिए यूएस इज द बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू बी फार्मा स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि फार्म डी वाले बच्चे एफपीजी नेप्लेक्स लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव टू थिंक अबाउट दैट। Is there any pharmacy certifications that is valid in across all the countries, like there is a board certifications? That's depend. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल फार्मेसी लाइसेंसिंग होता है, बाकी सारे कंट्रीज में स्टेट काउंसिल लाइसेंस देती है, तो आपको स्टेट वाइज चेंज करना पड़ेगा। एम फार्म किया है अगर और आपको यूएस जाना है विद द बेनिफिट टू लाइसेंस, आपकी एम फार्म कौन से सब्जेक्ट्स में, अगर फार्माकोलॉजी में या क्लिनिकल में है तो आप एफपीजी लिखने के लिए एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि हमने पीछे कुछ स्टूडेंट्स का जो एनएबीपी के साथ उसके बारे में फाइट करके अलाउड करवाया है, दो स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट। बट अगर आपने क्लिनिकल में एम फार्म नहीं की है तो आप वहां पे लाइसेंसिंग एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, दूसरी चीज,
अगर आप वहां पे जाके लाइसेंसिंग एग्जाम करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको ऐसे प्रोग्राम पढ़ना चाहिए। अगर एफपीजी नहीं होती है तो भी आप सर्वाइव कर सको, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एपिडेमियोलॉजी हो गया या हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। डोंट गो विथ रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोग्राम, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस इन लॉन्ग रन। 3-4 साल के बाद रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोग्राम और रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स आर नॉट might be they will not be in a very good positions. Okay. फार्मेसी टेक्नीशियन का स्कोप इज ओके, बिकॉज द फार्मेसी टेक्नीशियन के स्कोप में ये है कि आप वहां पे एक कंफर्ट जॉब ले सकते हो अराउंड अबाउट 50, 55, 60,000 डॉलर्स पर ईयर वाली। ओके। एंड अमाउंट फॉर पीबीसी का मतलब आप अगर लाइसेंसिंग एग्जाम्स के पूरे एग्जाम कॉस्टिंग्स के बारे में देखना चाहते हो तो हमने यहाँ से आपको कुछ, अगर आप फिजिकली आए हैं तो हमने पेम्पलेट्स दिए होंगे आपको, और वो पेम्पलेट्स या तो आपको फिजिकली वो डाउनलोडेबल में भेज देंगे। उसमें पूरे प्रोसेस लिखी होती है कि कौन सी एग्जाम की डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन की फीस कितनी है, ये सारी चीजें यू कैन कीप इन टच विद अवर टीम मेंबर्स एंड दे कैन सेंड यू। ओके। अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, आप बहुत सारी जगहों पे आप ट्राई कर सकते हो। पीबीसी इवैल्यूएशन आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडिया से आप स्टार्ट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। आई वांट टू नो द डिटेल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स। ओके, मैंने बता दिया कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स आर गोइंग टू बी मोर वल्नरेबल व्हेन द एआई इज गोइंग टू डेवलप। ओके, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स आर नथिंग बट द डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस। एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, दैट्स अबाउट द रेगुलेटरी पार्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन को फीड करना है। तो एआई माइट बी डैमेज दिस प्रोफेशन। यस, केबीएस आप इंडिया से लिख सकते हो। Okay, there are so many questions, and now I think we are running out of time. Okay, आप यूएस में फैमिली वाले बच्चे हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हो, फार्माकोलॉजी ले सकते हो, एपिडेमियोलॉजी ले सकते हो, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं आपके पास। Okay, so thank you very much for your responses, and बहुत सारे questions, still I have like more than 90 questions are there, so it's very difficult to answer all the questions, but I try my best to cover pretty much all the points. Okay. It's not possible to get over the phone of your appointments, but you have to go through the process, and that process is you have to communicate with the call with the team members, and you have to book your appointment schedule. And on based upon that, we are going to give you, like, personally, if you want to meet me, that is the process, that is the protocol. But if you want to meet any of our team members, counselors, they are well competent enough and they can guide you pretty much everything. Okay, but I'm very busy with the other stuff. I am also taking care of so many other stuff. तो मैं वीक में 2 ही दिन मिलता हूँ, ट्यूसडे एंड थर्सडे को. Okay, but those students who are registered with us, they have more frequency to meet me. That's why it's very difficult for me to answer pretty much all the questions and to meet all the students. Sorry for that, because that's the limitations of the time and limitations of the resources. That's why, otherwise I'm more than happy to help all the students अगर मैं कर सकता हूँ तो. Okay, sorry, some of the students I haven't covered your question. If I'm going to go with all the questions, that might be like tomorrow at the same time. It's more than 12 hours will take to cover all the questions. Okay, thank you very much. Have a good time, and see you soon. If you need any help, Pharma Vision is always there to help you out. Take care. Bye bye. Have a good time. Bye.